ईद मुबारक। बॉलीवुड की ईद तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सोनम ने खाई कौन सी कसम? सलमान, शाहरुख और आमिर कहां मना रहे हैं ईद? IIJW फैशन वीक में कौन कौन से बॉलीवुड सितारे उतरे रैंप पर? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सनी लियोनी का अनसीन एक्सक्लूसिव रेड साड़ी एक्ट। आज के बुलेटिन की शुरुआत सोनम कपूर से। सोनम कपूर हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है, लेकिन अब सोनम ने इन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए खाई है एक कसम। क्या है वो? लेट्स सी। I'm gonna keep shut. I'm gonna keep shut. I'm gonna keep shut. Sonam Kapoor finally shuts up and you wanna know why? पिछले कुछ सालों में काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां सोनम्स वर्ड्स got her into trouble। हम इसे फुट इन द माउथ सिंड्रोम भी कह सकते हैं, या फिर शायद this daddy's little girl really does speak out her mind, but not anymore। I'm gonna keep shut and maybe this is the final question of the interview. तो आखिर सोनम क्यों रखना चाहती हैं अपना मुंह बंद? अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों नहीं देना चाहती हैं कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर? You try asking her about Puneet or something personal and this is what she says. I'm gonna keep shut and maybe this is the final question of the interview. कुछ समय पहले सोनम ने उड़ाया था कटरीना के करियर चॉइसेस का मजाक and she quoted, I don't know how she does that. You need a certain kind of commitment and a certain kind of shamelessness to do certain things. You get that maybe with stardom or with confidence in your talent or with who you are as a person. I need to develop that before I do films like that. और हम कैसे भूल सकते हैं दी ऐश और आंटी एपिसोड? But this is not it. कुछ recent events में सोनम ने कई बार ऐसे blunders किए हैं। Here are a few of Sonam's move-hut moments. I'm very move-hut. Usually when I do stuff like that, people don't like it. मेरे generation में सबसे stylish कंगना रनौत। I'm Anil Kapoor's daughter. I'm Anil Kapoor's daughter. I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. I mean, if I wasn't, I mean, I have born with a silver spoon in my mouth. I have born with a silver spoon in my mouth. Well, looks like daddy's little girl has learnt it the hard way. And according to sources, सोनम के PR ने उन्हें समझाया कि वो इतनी मुंह फट ना बने और जरा सोच समझ कर कमेंट करें। I'm very move-fut. I have born with a silver spoon in my mouth. Well, we sure are gonna miss out on the fun if she does change for good, isn't it? Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. IIJW फैशन वीक पर बॉलीवुड सितारों का हुजूम नजर आया। वेल, रैंप पर उतरे कौन कौन से सितारे? We have all the visuals. Talk about glamour, glitter and shimmer, and you are at the right place. इस वीक चल रहा है IIJW और इस फैशन वीक के फर्स्ट डे पर हमें दिखे बी टाउन के कुछ celebs. Some walked the ramp and some chose to just be a part of it. Who caught our attention was this absolutely unusual pairing of Abhay Deol and Nargis Fakhri. Abhay Deol दिखे यहाँ wearing a band gala. वहीं Nargis Fakhri looked absolutely stunning in that gold and emerald green combination. इनकी walk sizzling थी। आइए सुनते हैं how do they feel about walking the ramp for this jewelry week. Well, that's what I said. I'm not really a jewelry person, and so when the idea for walking for a jewelry brand came up, the only reason I did it was because it was Amrapali, because I was familiar with the brand. It's been around for so many decades, and ये तो थे नरगिस और अभय. Also a part of this jewelry week was Sonam Kapoor, dressed in bottle green. Sonam looked drop dead gorgeous. बाकी celebs की बात करें जो यहाँ दिखे, तो Vivek Oberoi was here with his mom. Mugdha Godse, who walked the ramp, chose to go black. We didn't quite like Mugdha's look though. The others spotted were Tushar Kapoor in an Indian avatar, Zaid Khan and Hema Malini looking as evergreen in her attire. तो कुछ इस तरह complete हुआ IIJW का day one with lots of jewels splashing shine and color at the event. For Rudrani Chattaraj and Aarti Dani, Zoom, Mumbai.
आज है ईद का दिन और इस मौके पर बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, वी हैव ऑल द डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। बॉलीवुड ने कहा ईद मुबारक। बॉलीवुड ने मनाई ईद। एक दूसरे को गले लगाकर घर में सेवैया और शीर खुरमा बनाकर पूरे बॉलीवुड ने ईद सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड में किस किस स्टार के क्या हैं ईद प्लान्स, जूम आपको दे रहा है इनके डिटेल्स। सलमान खान इस बार ईद नहीं मनाएंगे। सलमान ने कहा है कि रितेश देशमुख के फादर की डेथ होने पर उन्होंने अपने ईद के प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन घर और फैमिली के लिए सिंपल सेलिब्रेशन जरूर होगा। आमिर खान इस बार ईद पर शिकागो में हैं। आमिर वहां फिल्म धूम 3 की शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए ईद भी वो वहीं सेलिब्रेट करेंगे। शाहरुख खान भी मुंबई में नहीं है। शाहरुख लद्दाख में अपनी यशराज बैनर की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शाहरुख ने ईद की नमाज भी वहीं पर पढ़ी। इसके अलावा इमरान खान दिल्ली में ईद सेलिब्रेट करेंगे। फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग की शूटिंग लोकेशन में ईद सेलिब्रेट करेंगे और सैफ अली खान लंदन में। तो कुल मिलाकर इस ईद पर सलमान खान को छोड़कर सभी बड़े बॉलीवुड स्टार्स मुंबई से बाहर ही ईद मनाएंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम B-Town। एंजॉय। We caught them, we clipped them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत ऐश्वर्या राय बच्चन की इन स्पेशल पिक्चर्स के साथ। ये है ऐश्वर्या की कोची की तस्वीरें, जहां उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए ह्यूज क्राउड के सामने स्पीच दी। वेल, इस इवेंट में ऐश्वर्या टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में थी और इसके साथ साथ उनकी ज्वेलरी लग रही थी काफी अट्रैक्टिव। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं करीना कपूर की एक हेयर ब्रांड के लिए शूट की गई प्रिंट एड की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें डिफरेंट ड्रेसेस एंड पोजेस में करीना लग रही है सुपर सेक्सी, स्पेशली हर सिल्की ब्लैक हेयर, इजंट इट? मूविंग ऑन, आपके लिए है फिल्म क्रिश 3 से प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर विद हर फैन। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं एक कॉलेज फेस्टिवल में अमृता राव की इन लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ। वेल, आज बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। संजय दत्त यूरोप से अपनी नी का ऑपरेशन कराकर लौटे और जूम ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया। अपने ऑपरेशन के बारे में संजय दत्त का क्या है कहना, लेट्स सी। एक हाथ किसी के कंधे पर तो दूसरे हाथ में स्टिक। मुंबई एयरपोर्ट पर लड़खड़ाकर चलते संजय दत्त, उनका बियर्डेड लुक। संजय दत्त के साथ मान्यता दत्त भी मुंबई एयरपोर्ट पर। आपने बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त को इस रूप में पहली बार देखा होगा। दूसरों को सहारा देने वाले संजय दत्त आज खुद एक स्टिक का सहारा लेकर चल रहे हैं। दरअसल संजय दत्त अपने नी का ऑपरेशन कराने यूरोप गए हुए थे और ये उनके लौटते वक्त मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। बाबा ने यहाँ मीडिया से भी बात की, जरा सुनिए। तबीयत बेटर है अभी, थैंक यू। घुटने का सर्जरी था, वो सर्जरी करा के आ गया, अभी एकदम फिट, वापस एक्शन चालू। वेल, आपको बता दें कि संजय दत्त की नी पर चोट तब लगी थी जब वो फिल्म ब्लू के लिए अंडर वाटर सीन कर रहे थे। तब से लेकर अब तक संजय दत्त ने कई ट्रीटमेंट्स करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फाइनली उन्हें यूरोप में जाकर सर्जरी करानी पड़ी। वेल, अब हम तो यही कहेंगे कि बाबा जल्द ही ठीक हो जाएं। जो उन्होंने कहा है सच हो जाए। एकदम फिट, वापस एक्शन चालू। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। विवेक ओबरॉय पापा बनने वाले हैं। वेल, आने वाले मेहमान के लिए विवेक और उनकी फैमिली ने क्या कुछ प्लानिंग की है, चलिए खुद उन्हीं से जानते हैं।
विवेक ओबरॉय को हमने उनकी पूरी फैमिली के साथ स्पॉट किया इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक इवेंट पर, जहां विवेक ओबरॉय ने किया रैंप वॉक और हमसे बैक स्टेज की एक्सक्लूसिव बातचीत भी। अब जब विवेक ओबरॉय बनने जा रहे हैं पापा, तो ऐसे में उनकी मॉम से ये सवाल पूछना तो लाजमी ही था कि हाउ इज शी फीलिंग दैट सून शी इज गोइंग टू बिकम अ ग्रैंडमॉम। I have no words to say that. I'm ecstatic. Absolutely. होने वाली ग्रैंड मॉम तो खुश थी ही, साथ ही विवेक ओबरॉय भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो जूम के साथ एक और खुशी शेयर की, आप भी सुनिए। I'm on cloud 9. I'm so happy and हमारे फैमिली के लिए क्या डबल खुशखबरी है कि मॉम दादी भी बन रही है और नानी भी बन रही है at the same time. So dad and mom are over the moon. My sister Meghna is also expecting. We're also expecting. So all we want is सभी के आशीर्वाद चाहिए, सभी के गुड विशेस चाहिए, सभी के ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रेयर्स चाहिए। Vivek is so overwhelmed that when we asked him about his professional life, तब भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की हैप्पीनेस पर ही एम्फसाइज किया। फिल्मों का दौर भी अच्छा चल रहा है, करियर इज डूइंग रियली वेल, वी फील वेरी ब्लेस्ड, वेरी हैप्पी, बट जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो एक अलग स्तर का, अलग दर्जे का हैप्पीनेस है। Well, not just this, विवेक और उनकी मॉम दोनों ही प्रियंका से इतने खुश है कि उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। My wife is an absolute angel. मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. She's such a beautiful person that I don't need to do anything. तो कुछ इस तरह विवेक और उनकी मॉम यशोदा जी ने शेयर की जूम के साथ एक्सक्लूसिवली अपनी खुशियाँ। We hope that this family stays happy forever. For आरती दानी, Zoom, मुंबई। फराह खान और बमन ईरानी मुंबई के एक मॉल में अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे, जहां दोनों ने जमकर किया डांस। जरा भी देखिए। फराह खान और बमन ईरानी अपनी फिल्म शिरिन फरहाद की निकल पड़ी को प्रमोट करने पहुंचे मुंबई के इन्फिनिटी मॉल मलाड में, और यहाँ इन दोनों को देखने के लिए भी भीड़ का जमावड़ा लग गया। जरा आप भी देखिए। वेल, बमन ने मॉल के बीच में स्कूटर चलाकर सबको किया एंटरटेन। हैव अ लुक। इसके साथ साथ जब फैंस का क्रेज ज्यादा बढ़ गया तो बमन और फारा फैंस के बीच डांस भी करने लगे। वेल, ये फिल्म बिल्कुल अलग सब्जेक्ट पर है और स्टार कास्ट भी बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस तरह इस फिल्म की स्टार कास्ट के लिए भी फैंस का क्रेज नजर आ रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कलेक्शंस कर सकती है। फॉर रुचि, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अभय देओल के दिल की बात एंड सनी लियोनी का अनसीन रेड साड़ी एक्ट। अभय देओल ने अपने रोमांस से लेकर हॉलीवुड करियर तक का एक एक सीक्रेट रिवील किया हमारी रिपोर्टर कीर्ति तरंग को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। जरा आप भी देखिए। We are with Abhay Deol right now and we are going to talk about love. Lots of it. Abhay, welcome on Zoom. Thank you. सबसे पहले आप ही हमारे ऑडियंसेस को बताइए that why are we going to talk about love and lots of it today? ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है। I'm the associate producer for this film called Love, Lots of It. ये एक अमेरिकन फिल्म है और अभी उसको iTunes पे लॉन्च किया गया है। iTunes अमेरिका एंड iTunes इंग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं कि एक अंग्रेज़ी शॉर्ट फिल्म को मैं इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, but the title is Love, Lots of It and it's based on an American folk tale. एक folk tale में लिखा गया है कि you meet the devil at the crossroads and then you strike a deal with the devil to get what you want. तो मुझे रॉब जो डायरेक्टर है उसका टेक बहुत पसंद आया है। He's contemporized it of course, और उसने डेविल को कैसे दिखाया है और लोग किस मुद्दे को लेकर आते हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, व्हाट आर दे रेडी टू गिव अप देयर सोल्स फॉर, उसको लेकर एक बहुत पोएटिक सी कहानी बनाई है।
So it's not a love story. You have to watch it to know that. Okay, Abhay, in real life, how are you? Like, do you believe in love and lots of it, or you're like, okay, love is an important part of life, but my life doesn't revolve all around it? Love is an important thing in life for sure. And does my life revolve around it? In some ways, yeah, I think so. I think we do things out of love more than anything else. You are a die-hard romantic. I guess. I'm not very romantic. I mean, I guess I'm romantic in my own way. But you're not proud of it. No, I'm proud of it. I'm proud of the fact that I'm not over. Why are you blushing? That's just the makeup. Also, actors जो movies produce करते हैं, चाहे वो शाहरुख हो या अक्षय अजय सैफ, anybody, they like to act in their own production. Yeah. Why? मतलब, will we see you in future acting in a Hollywood movie produced by you? I don't know. I don't know. It doesn't seem likely, but never say never. Okay, we are hopefully looking forward to that. आपका एक प्रोडक्शन हाउस है Forbidden Films करके, उसके लिए आप बसरा बनाए थे, जिसके लिए आपने कर्व मगा भी सीखा था. Unfortunately, film couldn't take off. So did that martial arts learning go waste और real life में आपने use कर लिया? I'm glad you asked me this question. नहीं, क्राव मगा में फिर भी मैंने कंटिन्यू किया और उसका इस्तेमाल हुआ है चक्रव्यूह में. नॉट दैट चक्रव्यूह में मैं क्राव मगा स्टाइल फाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी क्लासेस थी, आई वाज फिजिकली ऑलरेडी एक्टिव एंड क्योंकि फ़िल्म में बहुत स्टंट्स हैं, भागना पड़ा बहुत और फाइटिंग करनी पड़ी, शूटिंग गन्स, टैकल्स वगैरह वगैरह. क्योंकि एक फिटनेस लेवल पे मैं था ऑलरेडी क्राव मगा करके, आई वाज एबल टू डू दैट मोर इजीली. चक्रव्यूह के प्रमोशन के लिए कॉमिक स्ट्रिप लॉन्च की जाएगी. सो एंड इट्स कॉल्ड एनकाउंटर्स ऑफ सोबले. इज इट अ डिग ऑन धोबले? एंड व्हेन यू वर अ किड, किसी कॉमिक हीरो या कॉमिक कैरेक्टर को देख के आपको लगता था कि बड़े होके मैं ये बनूंगा? आई मीन वो पहला क्वेश्चन तो आप प्लीज़ प्रकाश जी से पूछिए, बिकॉज आई डोंट नो द आंसर टू दैट. दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं ये कहूँगा कि बचपन में मुझे स्पाइडरमैन और बैटमैन बहुत पसंद है. बैटमैन बिकॉज ही हैड ऑल द गर्ल्स इन द गैजेट्स एंड द बेस्ट कार्स. दैट वाज अभय देओल विद कैमरामैन अनिल कीर्तितरंग, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सनी लियोनी का अनसीन रेड साड़ी एक्ट. सनी लियोनी जूम के ऑफिस आए और यहाँ उन्होंने 1 मिनट में साड़ी पहनकर दिखाई और उससे भी कम टाइम में उतार भी दी. बस सनी का अनसीन साड़ी एक्ट हम आपको आज रात 10 बजे अपने शो बीच नाइट में दिखाएंगे, लेकिन उसकी कुछ ग्लिम्सेस देख लीजिए. At last, once more, आप सभी को ईद मुबारक. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Riya. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.